ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਡੀਏ ਦੇ 11 ਸੰਕਲਪ 2022 ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 11 ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਧੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਰੋਨਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਈਫਲਸ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਪਟੈਂਬਰ 18 ਜਦ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ 1000 ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਰਫਲੀ 500 ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਓਵਰ 1 ਲੱਖ ਰਾਊਂਡ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ IED से, एक्सप्लोसिव से, RDX ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰਫੀਟ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਧਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਿਊਰੈਂਸ ਔਰ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰੋਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਪਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 47 ਦਾ ਜੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, 65 ਦਾ ਜੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, 71 ਦਾ ਜੰਗ, ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਜੰਗ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 35,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ we have been declared the best state in the whole of Punjab, India। ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਔਰ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ was education। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ we have been declared the best state in the whole of Punjab, India। और स्मार्ट स्कूल साढ़े बने हुए ने बड़े तेजी नाल असी अगे वधा रहे से इन्हां नूं एजुकेशन दे इहदे विच और कॉलेजेस दे विच। और अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, कोविड ने पिछा सब कुछ करता। ਉਹਦੇ वास्ते मैं अपने बच्चों नूं टैलीफोन दिते से ताकि वो 12वीं और 11वीं दे विच इस्तेमाल कर सकन अपनी पढ़ाई वास्ते। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू डू ऑल्सो। ये भी सॉरी हर वेले गलत समय ते चल पैंदे ने। मैं कर एक था एजुकेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट असी कमिटमेंट मैं की सी पंजाब नूं कि आई वुड पुट एटलीस्ट 1 लाख करोड़ ऑन द ग्राउंड। 1 लाख करोड़ असी धरती ते लगावांगे। ये नहीं कि वो करिए दी उन्हां दे नाल समझौते असल धरती के उपर बिल्डिंगां लगनियां पैणगियां फॉर इंडस्ट्रीयल ग्रोथ। एंड मैनू खुशी है कहते कि मेरी 18 सितंबर तो पहला असी 1 लाख करोड़ वॉज पुट ऑन द ग्राउंड और अज काम उत्थे चल रहा। लेकिन ये बड़िया छोटियां चीज़ां नहीं। वी हैव टू कॉन्सनट्रेट मच मोर। आपां नूं ज़्यादा लियाउणी पऊ क्योंकि एजुकेशन थोड़े कोल यू डोंट हैव जॉब्स। हुण मैं 22 लाख नौकरियां दवाइयां ने थ्रू दीज कैंप्स एंड ऑल जिहड़े असी पिछे 5 सालां दे विच 22 लाख कुछ भी नहीं। अज भी साडे बच्चे अपने मापिया की जमीन जैसे पूरी साहब ने कहा बगवा के जाता है, कोई कैनेडा जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई कितने जाता है। क्यों नहीं कि पैसा उरे लाइए और उरे डेवलपमेंट होए, उरे इंडस्ट्री लगे ताकि वो बच्चे बाहर ना जान उरे रहन। ये साडे वास्ते एक बड़ा मेजर इशू बनेगा। एंड आई एम श्योर साडा जिहड़ा संगठन है इस गल नूं पूरी तरह असीं देखांगे। और लास्ट सीगी मैं जेड़ी गल कही सी अनफॉर्चुनेटली साडा बॉर्डर एरिया है और पंजाब की कंट्रीब्यूशन डिफेंस सर्विसेज नूं बहुत ज़्यादा है। मैनू बड़ी खुशी है कि ये कहते क्योंकि मेरी अपनी रेजिमेंट उहदे विच है, मेरे फादर उसी रेजिमेंट से, ग्रैंडफादर भी उसी रेजिमेंट से, तो साडा तो बड़ा पिछोकड़ उत्थे है। लेकिन जिन्ने तुसी फौज रखोगे इन्नी कैजुअलिटीज होंगियां। और मैं कैजुअलिटीज वास्ते मैं दिता सीगा कि हर परिवार जिथे कैजुअलिटी होएगी एक नौकरी सरकारी असी देवांगे और 50 लाख रुपया। मैं रेकमेंड करना चाहना अपने प्रधान जी नूं कि उसनूं 50 लाख नूं असी 1 लाख 1 करोड़ कर दिए। 1 करोड़ वो परिवार जिहदा कोई भी शख्स कश्मीर की घाटी या चीन के नाल जिथे लड़ाई होंदी है उत्थे जिहड़ा शहीद हुंदा है उहनूं असीं ये दे सकीए। एक नौकरी तक करांगे और 1 लाख 1 करोड़ रुपया उहनूं उहदे परिवार नूं ताकि जो घाट महसूस करते हैं अपने जी जिहड़ा चला गया उन्हां दा ਉਹਦੀ मदद वास्ते। सो बेसिकली 4 ਗੱਲਾਂ एक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੀਵ ਦ ਫਲੋਰ ਟੂ ਦੀ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ खत्म करने ही असी कुछ प्रोग्राम पॉइंट दिते हैं और वो तो अलावा भी अगर सानू होर भी जरूरत पई वो भी करांगे। पहले तो है कि माफिया राज को खत्म करने ਲਈ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां की तर्ज ते नवीनतम
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਯੁਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਾਂਡੇ ਤੇ ਫਿਰ 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਚਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ।
वातावरण करके भी है ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ बहुत कोविड से लोगों ने काम किया पर सरकारों ने कोई बहुत ज़्यादा उधर ध्यान नहीं दिता असी वादा किया कि असी उन्होंने वल खास करके ध्यान देवांगे इस तो इलावा सरकारी हस्पतालों और सेहत केंद्रों में डॉक्टरों ते नर्सां पैरामैडिकल स्टाफ दी खाली असामियां तुरंत भरिया जाएगा हुण की है कि तुहाडे सामने है कि हस्पतालों च दवाइयां नहीं स्टाफ नहीं डॉक्टर नहीं तुसीं पिंडां में जिन्ने हस्पताल खुले ने जां डिस्पेंसरियां ने किते डॉक्टर नहीं है जिते डॉक्टर नहीं किते नर्स नहीं है कोई क्लास 4 एम्पलॉय भी है नहीं इस करके नां दे उत्थे डिस्पेंसरियां ने उन्हां दा पूरे तौर ते असीं उहदा प्रबंध करांगे इस करके बाकी खुशहाल किसान तुहानूं पता भी किसानां दी अज पंजाब सब तो उपर किसानी ते निर्भर करता है अज किसान की हालत माड़ी हो रही है उन्होंने खुशहाल करने लई 5 एकड़ से घट जमीन है जिन्हें कोले उन्होंने खेती कर्जा माफ किया जाएगा उन्होंने 5 एकड़ तो घट जिन्हें को जमीन है उन्होंने सारा कर्जा जो होगा वो माफ किया जाऊगा केंद्र सरकार वालों दी जा रही MSP व्यवस्था का विस्तार करते हुए फलों सब्जियां दालों और तेल बीजा का उत्पादन करने लई किसानों लिए भी घट्टो घट समर्थन मुल MSP यकीनी बनाया जाएगा फसली विभिन्नता और टिकाऊ खेती नूं करने लई 5000 करोड़ रुपए का सालाना बजट मंजूर किया जाएगा बेजमीने किसानों नूं काश्त लई 1 लाख एकड़ शामलात जमीन अलाट की जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तर्ज से हरेक बेजमीने किसान नूं भी 6000 रुपए की सालाना वित्ती सहायता दी जाएगी अधूरे सिंचाई प्रोजेक्टों पहल के आधार पर पूरा किया जाएगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नवे सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे मेरा कहने तो भाव है कुछ संकल्प अज असीं कर रहे हैं तो बाकी असीं 2 बारी होर भी रखांगे वो शर्मा जी तुहानूं अपने सुभाष जी दसणगे तो अज सिर्फ असीं कुछ पॉइंट तुहाडे सामने रखे ने ताकि असीं इस इशू ते इत्थे इकट्ठे जिहड़े होया तीनों पार्टियां असीं इकट्ठे होकर वादा करिए लोगों नाल कि असीं आह कुछ करन नूं साडा वचनबद्ध है और असीं वचनबद्धता पूरी तरह निभाउण दा पूरा यतन करांगे बहुत बहुत धन्यवाद हुण मैं बेनती करांगा भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी कि कुछ संकल्प साढ़े सामने कैप्टन साहब ने और ढींडसा साहब ने रखे ने कुछ होर संकल्प भी साढ़े सामने रखणगे और जिहड़े संकल्प असीं कीते ने उन्हां दी कुछ विस्तार होर जानकारी कि असीं की करांगे मैं तुहाडे सामने रखांगे जी पहला पोजीशन मैं माइक देने तो पहले मनु जदों ढींडसा साहब कह रहे सीगे गल कर रहे सीगे नशा मुक्ति होई तो मनु थोड़े याद आया कि कुछ लोग जो इतने प्रचार कर रहे हैं उन्होंने दिल्ली तो हर एक
ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਨੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਬਣਾਓ ਪੰਜਾਬ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ठीक है, वेरी गुड, वो पॉइंट ही रह गया। नहीं चल नहीं रहा। मंच से विराजमान एनडीए के सारे नेतागण, कैप्टन साहब ने, पुरी साहब ने और ढींडसा साहब ने अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एनडीए के 11 संकल्प और उहदे नाल एक संकल्प कैप्टन साहब ने होर जोड़ के गलबात शुरू की थी। और इस तो बाद पूरा एनडीए का मैनिफेस्टो भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का केंद्र का रिकॉर्ड है कि ये मैनिफेस्टो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। साडे लिए एक कमिटमेंट है कि इहदे अंदर लिखे एक एक शब्द नूं असी जमीनी स्तर ते लैके जावांगे। आर्टिकल ऑफ फेथ और लोकां दा इहदे लई साडे प्रति विश्वास भी है और साडे ते वो यकीन भी करते हैं, क्योंकि केंद्र दे अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के नाल जो जो कमिटमेंट की सी और जो जो साडे मैनिफेस्टो च आया सी उन्होंने जमीनी स्तर के उत्ते असी उतारिया है। इस करके अज का ये संकल्प जिहड़े 11 संकल्प और एक संकल्प हुण कैप्टन साहब ने जुड़िया है, ये समूचे पंजाबियों के नाल एनडीए की कमिटमेंट है। कैप्टन साहब ने अपना विषय लेंदे हुए और पॉइंट लेंदे हुए शांति भाईचारे के विषय के अंदर भी गलबात की है। मैं कुछ जोड़ना चाहना कि साडी एक कमिटमेंट है कि पंजाब का एक दुर्भाग्य है कि जदों जदों पंजाब के अंदर चुनाव आता है इत्थे बेअदबी दीयां घटनावां बददी हैं। पता नहीं वो किहड़े राजनीतिक दल ने ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। बेअदबी विरुद्ध बने कानूनों को सख्ती नाल लागू करना यकीनी बनावांगे। सरहद पार तो जिहड़ा खतरा उहदा जिक्र कैप्टन साहब ने भी किया कि हथियार और नशे की जिहड़ी तस्करी है इनू असी ड्रोन निगरानी नाल और इलैक्ट्रिक फेंसिंग अते पुलिस चौकियां के माध्यम के नाल निगरानी करके यकीनी बनावांगे कि इहदे रोक लगे। साडे सूबे च एक गैंग कल्चर चल रहा है, इनू खत्म करने लई सख्त कानून असी बनावांगे और सीसीटीवी निगरानी के माध्यम के नाल जेलों की सुरक्षा नूं भी मजबूत करांगे। नागरिकों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाने के लिए
राज भर के अंदर एक सिंगल एमरजेंसी पुलिस सहायता नंबर शुरू किया जाएगा और ये 15 मिनट के अंदर अंदर एक्टिवेट होएगा। कोई भी कॉल आएगी तो उत्ते एक्शन होएगा। सानू इन्ना पता कि 30 साल पहला पंजाब के अंदर काला दौर आया सी, आतंकवाद के नाल बहुत सारे पंजाबियों को अपना जीवन खोना पिया और बहुत सारे अपना घर बार छड़ के जाना पिया। अज तक भी उन्होंने बहुत सारिया समस्यावां की चर्चा जगह जगह से होंगी और उन्होंने शिकायत रहती है। अतवाद तो पीड़ित परिवारों की शिकायतों के निपटारे लिए सच ते सुलह कमीशन का गठन किया जाएगा अते अतवाद प्रभावित परिवारों को जगमुश्ता 5 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाएगा। बेरोजगारी पंजाब के अंदर बहुत बड़ी समस्या है और नौजवान जिहड़ा है वो मैनूं लगता है कि नशे वाल जाण का एक कारण बेरोजगारी भी है और इहदे नाल बेरोजगारी तो पंजाब नूं बाहर कड्ढण लई असीं सक्षम युवा योजना के तहत सूबे के हर नौजवान नूं हर महीने घट तो घट 150 घंटे काम की गारंटी दी जाएगी। सूबे के सरकारी विभागों में सारिया खाली असामियां सरकार बनन दे 2 महीने के अंदर भरिया जाएगियां। पंजाब के बेरोजगार ग्रेजुएट नूं डिग्री पूरी होने तो बाद 2 साल तक 4000 रुपए प्रति महीना का बेरोजगारी भत्ता। और आप इंडिया का आ गया होर रोजगार पैदा करने लई SIDBI नाल साझेदारी की जाएगी। राज विच सुगम उद्यमियां की पहचान करन, उन्होंने तैयार करन अते उत्साहित करन लई मिशन स्वावलंबन की शुरुआत की जाएगी। सशक्त नारी किसी भी समाज के अंदर बिना नारी की मजबूती के सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर किसी भी स्टेट के अंदर नारी ताकतवर होती है, स्वावलंबी होती है, आत्मनिर्भर होती है तो वो समाज भी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होता है। इनू ध्यान रखते हुए ऐसी इस संकल्प पत्र के अंदर पुलिस फोर्स विच औरतों को 33% राखवा किया जाएगा। औरतों विरुद्ध अपराधों की रोकथाम लई सारे जिलों में विशेष महिला थाने अते महिला अदालतों की स्थापना की जाएगी। असी औरतों को काउंसलिंग, कोचिंग अते सिखलाई सहूलतां प्रदान करके फौजी सैनिक नौकरियां में भागीदारी को उत्साहित करांगे। असी पोस्ट मैट्रिक तो लैके पोस्ट ग्रेजुएट तक सारिया कुड़ियां को 1000 रुपया महीना वजीफा देंगे। छोटे उद्योग, व्यापार और खेती की जमीन खरीदने लई महिलावां को सस्तियां दरां ते 10 लाख रुपए तक का लोन दिता जाएगा। आंगनवाड़ी अते आशा वर्करां का भत्ता 10,000 तो 6,000 तक बढ़ाया जाएगा। सबका साथ सबका विकास ये केंद्र की साडी सरकार मोदी जी का मूल मंत्र है। इनू सार्थक पंजाब च करने लई बुजुर्गां, दिव्यांगां, विधवा लई पेंशन की रकम बढ़ा के 3,000 रुपए प्रति महीना की जाएगी। सरकार विच ठेके ते रखे गए अध्यापक, सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर
ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। सूबे विच गरीब वर्ग नूं पौष्टिक खुराक देण लई गुरु कृपा कंटीन राही 5 रुपए विच भोजन दिता जाएगा। असी केंद्र दे सहयोग दे नाल अनुसूचित जाति दे विद्यार्थियों लई सूबे दे हर एक ब्लॉक विच होस्टल स्थापित करांगे। ਅਸੀਂ असंगठित ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50,000 रुपए का लाभ प्रदान करांगे। एक अज असी संकल्प जिहड़े तुहाडे सामने दुहराए ने, मैं जिदा शुरू च भी कहा कि पूरा मैनीफेस्टो जिहड़ा साडा संकल्प पत्र है वो बाद च आएगा। आप सब का मैं धन्नवाद करदा। ਇਹਦੇ ਚ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, जिसका जिक्र कैप्टन साहब ने भी किया है। एक है म्यारी सिक्ख्या सब का अधिकार, क्वालिटी एजुकेशन पंजाब च दी जाए, ये भी साडा एक संकल्प है। इस दे तहत असी सूबे च क्वालिटी के उत्तम दर्जे के स्मार्ट स्कूल स्थापित करांगे। और ये केजरीवाल साहब वांगू नहीं होएगा कि 12 स्कूल बना दो बाकी 1100 छड्ड के उन्हां 12 की मशहूरी करो। असी कोशिश करांगे सारे स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों कन्वर्ट करिए। सूबे के हरेक तहसील के अंदर घट्टो घट एक सरकारी कॉलेज स्थापित कराएंगे। इस वे पंजाब जिहड़ा है वो देश का ऐसा सूबा है जिसे सब तो घट, अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से रेशो देखिए, सब तो घट गवर्नमेंट कॉलेज ने। सो असी हर तहसील च सरकारी कॉलेज बने, इसमें असी इंश्योर कराएंगे। और सरकारी कॉलेज रोजगार मुखी पेशेवर कोर्सां नूं प्राथमिकता देंगे, रवायती कोर्सां दे नाल। इस तरह ही पंजाब नूं स्किल का एक बड़ा सेंटर बनाने लई स्किल लेबर का असी 14 तो 30 साल के उम्र के किसी भी व्यक्ति नूं स्किल डेवलपमेंट देने लई असी एक नवा एक्ट लैके आवांगे, हुनर सिखलाई का अधिकार है। और उस एक्ट के तहत 14 तो 30 साल के हरेक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वो स्किल डेवलपमेंट लई स्किल एजुकेशन लै सके। उसदे लई असी पूरे पंजाब भर च कित्तामुखी सिखलाई संस्थावां स्थापित करांगे। इसी प्रकार पंजाब के SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के जनरल विद्यार्थी भी ने, उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ केंद्रीय और राज्य सरकारों की जो भर्ती परीक्षावां होंदियां उन्होंने मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था असीं पंजाब करांगे, ताकि पंजाब के बच्चे जिहड़े है जिन्हें भी सेंट्रल एग्जाम होंदे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होंदे हैं, उन्होंने भी चंगा परफॉर्म कर सकन। और एक होर बहुत बड़ा असीं कदम पंजाब के नौजवानों लई, विद्यार्थियों लई असीं लैके आवांगे। साडी कमिटमेंट है कि हायर एजुकेशन को कितनी महंगी होती जा रही है। हरेक विद्यार्थी जो पंजाब का विद्यार्थी है, चाहे वो हिंदुस्तान कितने भी पढ़न जाए, उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड जारी करांगे जिहदे चों 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट की सहूलत अपनी फीस भरन लई, अपनी किताबां लई लै सकेगा। सो एजुकेशन की साडियां कमिटमेंट्स ने। इस तरह कैप्टन साहब ने इंडस्ट्रीयल उद्योगिक इनकलाब की गल की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कुछ काम कुछ कमिटमेंट्स अपने जिम्मे रखी हैं। ਅਸੀਂ जानते हैं कि कोविड की महामारी दौरान पिछले 2 सालों लगभग बहुत बड़ा नुकसान उद्योग के व्यापार का होया है। सो असी वाइट पेपर लैके आवांगे सरकार बनने तो बाद, और जिन्ने भी प्रभावित उद्योग ने जिहड़े अफेक्ट होए ने उन्होंने असी विशेष राहत पैकेज देंगे इंडस्ट्री लिए और ट्रेड लिए। इस तरह जो टैक्स ने स्टेट गवर्नमेंट के कई प्रकार के उन्होंने असी तरक संगत बनावांगे। असी सिंगल विंडो क्लीयरेंस बहुत गल्लां होंदियां हैं, लेकिन असीं इहनूं होर इफेक्टिव करांगे। 15 दिन के अंदर जिन्नियां परमिशन चाहिए इंडस्ट्री की वो सारियां नूं असीं इंश्योर करांगे, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब नूं पहले 5 राज्यां च लैके आंदा जा सके। इस तरह असीं MSME बहुत बड़ा सैक्टर है जिहड़ा देश की इकोनॉमी नूं स्ट्रेंथन करदा है। उस MSME सैक्टर के विकास लई असीं लाला लाजपत राय MSME विकास केंद्र स्थापित करांगे। देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी को समर्पित केंद्र रहेगा, जो MSME सैक्टर को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, उन्हें मार्केट की एक्सेस दिलाएगा,
होर कई प्रकार की फैसिलिटेशन करेगा। इसी तरह एक बहुत बड़ी डिमांड सी पंजाब की इंडस्ट्री ली। पंजाब ऐसा सूबा है जिहड़ा देश च सब तो महंगी बिजली दे रहा इंडस्ट्री को। असी MSME सैक्टर को 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे और बाकी सारी इंडस्ट्री जी MSME तो इलावा है उन्होंने 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे। इसी तरह वैट का बहुत बड़ा इशू पेंडिंग है। असी वैट के सारे जो पुराने केस हैं उन्होंने असी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के राही रिजॉल्व करांगे। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का साडा संकल्प है कि विकसित पंजाब होवे। उस विकसित पंजाब लिए भी असी सूबे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ही ग्रोथ की है। कोई भी सूबा विकास से तां ही अगे बढ़ेगा जो उत्ते बुनियादी ढांचा विकसित होएगा। असी अगले 5 साल 1 लाख करोड़ रुपया जिहड़ा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट लिए खर्च करांगे। इसी प्रकार के नाल हरेक पंजाब के गरीब वर्ग नूं, इकनॉमिकली वीकर सैक्शन नूं, चाहे वो किसी भी जाति के होणगे, उन्होंने पक्की छत मिले। इसलिए असी पक्की छत हर एक का हक स्कीम शुरू करांगे और सब नूं पक्के घर मुहैया करावांगे। जल जीवन मिशन तहत शहरों के नाल पिंडां के अंदर भी साफ पीने वाला पानी हर घर च पहुंचे, टैप कनैक्शन के माध्यम नाल उन्होंने इंश्योर करांगे। सरहदी खेत्र, क्योंकि पंजाब का बहुत बड़ा एरिया बॉर्डर पे है, उस बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट लिए असी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कमीशन, सरहदी खेत्र विकास कमीशन की स्थापना करांगे। और जो मैं पहले ही जिक्र किया कि इंडस्ट्री लिए असी बिजली की कमिटमेंट कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। पंजाब के हरेक उपभोक्ता नूं, चाहे वह किसी जाति का होएगा, वर्ग का होएगा, पिंड च रहिंदा होएगा या शहर च रहिंदा होएगा, हरेक कंज्यूमर लिए 300 यूनिट फ्री बिजली साडी सरकार बनन ते असीं प्रोवाइड करांगे। और 300 यूनिट तो ऊपर 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। कोई भेदभाव वितरा किसी पंजाबी नाल नहीं होएगा, सब लई एक समान असीं ये बिजली का टैरिफ लेके आवांगे। सो ये कुछ कमिटमेंट्स जिहड़ियां असीं रखियां, साडी एनडीए की लीडरशिप ने साडे सामने रखियां। ये 11 संकल्प है और इन्हां दे उपर ही विस्तार दे नाल एक मैनीफेस्टो असीं बहुत जल्दी तुहाडे सामने लेके आवांगे, जिहदे च पंजाब के हर वर्ग लई साडा जो विजन है, साडा जो संकल्प है, वो विस्तृत संकल्प तुहाडे सामने संकल्प पत्र के माध्यम नाल असीं अगले कुछ दिनों च रखण वाले हैं। मैं एक तो छोटे से कमेंट्स करना चाहना। अश्विनी जी शर्मा जी ने कहा कि ये जिहड़ियां साडियां कमिटमेंट्स ने, संकल्प है, ये असी इंप्लीमेंट करांगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहना कि दीज आर एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इहदे च कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी की सरकार ने जो भी सेंट्रल प्रोग्राम्स बनाए सीगे उहदे बारे अलग तुहानूं सैपरेटली असी आंकड़े दे देंगे कि पंजाब ने किन्ने यूटिलाइज कीते ने, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाकी जिहड़ियां स्कीमां हैगियां। पिछला जिहड़ा बजट सीगा उहदे विच फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि साडा जिहड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर हैगा वो 35.4% वध रहा। 5.5 लाख करोड़ तो लैके वो 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। साडी एनडीए की सरकार होगी पंजाब विच वो जिहड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट है उन्होंने पंजाब विच लोकेट करांगे। साडी जिहड़ी प्रोडक्टिविटी PLI स्कीम हैगी जिहदे तहत 60 लाख जॉब्स प्रोड्यूस होणगियां, असी वो इंडस्ट्री नो पंजाब विच शिफ्ट करांगे। ते ये जिहड़े 12 संकल्प है ये पंजाब स्पेसिफिक ने, पर साडी सरकार पंजाब विच होएगी, दिल्ली विच होएगी, ते जिहड़ी सेंटर दी इकोनॉमिक रिकवरी स्कीम्स है। देखो इस वक्त हालत की है, पंजाब का कर्जा है 2,81,000 करोड़ या 3 लाख करोड़ के आसपास। जेडे भी तुहाडे सामने यो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगे कहने वो रेवड़ियां वंडनगे, मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा। अरे भाई बताना तो पड़ेगा वो कैसे करेंगे। वो जो प्रचार करते हैं वो उत्तराखंड में जाके भी रेवड़ी बांट आते हैं, वो गोवा में जाके भी बांट आते हैं। हमारे जो संकल्प है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने वाले हैं। आप महिलाओं को पुलिस फोर्स में 33% रिजर्वेशन देंगे, दैट्स अ कॉन्क्रीट स्टेप।
जो आप एमएसएमईज के लिए करेंगे, दैट्स अ कॉन्क्रीट कमिटमेंट। और जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट्स यहां लाएंगे, पीएलआई स्कीम में जो इंडस्ट्रीज होंगे उनको यहां शिफ्ट करेंगे, दोज आर कॉन्क्रीट थिंग्स। पर मैं यही ऐड करना चाहता था। और जैसे आपने अभी बताया कि ਜਦੋਂ अगले 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल तुसी पढ़ लेना ये संकल्प पत्र जिहड़ा हैगा, ये जो बाकी देश हो रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। देखो नशा एक ऐसी चीज हैगी जो तुसी सरकार दे लेवल ते खत्म भी करना चाहो, वो अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे ने। हुण कौन इत्थे व्यक्ति नशे नाल जुड़े हुए ने, मैं समझना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा कहना जरूरी नहीं, मैं कैप्टन साहब को रिक्वेस्ट करांगा। ये जिहड़ी गल तुसी कही है, प्लीज गेट योर फैक्ट्स। जेड़ा असी जब तो असी SIT शुरू की थी, मैंने की थी, मेरी गवर्नमेंट ने की थी, वी हैव अरेस्टेड 63,000 पीपल एंड हू आर इन प्रिजन। जो जेल दे विच से 63,000, जिस दिन मैं सरकार छड़ी वो तो 63,000 आ गया सीगा अप टू 43,000, बिकॉज सम बेल हो गया, किसी कुछ हो गया, किसी कुछ हो गया। नेवरदलेस 3,000 gangsters were arrested and they were somewhat eliminated in this when they came across and engaged our police and our security forces. So engagement with gangsters हो गए. So don't think nothing has been done. 63,000 people in jail in Punjab is not a small matter. In addition to this, there were 6 big fish. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ 2 we bought, one from Armenia, one from Georgia, और मैं लेके आया ਸੀ वापस। एक थोड़ा is in Hong Kong jail, one of them is in Rome, he is under Interpol custody in Rome, and 2 people are more, one in Georgia and one in Armenia. The government of India is working fully into trying to get extradition from them. Big fish है, मगरमच्छ। एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वन बाय वन। मगरमच्छ। हाँ जी, बात दीजिए। एक आफ्टर बात दो, कम टू यू प्लीज। सवाल है कि आ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ 65 सीटा ਤੇ बीजेपी लड़ रही है, 38 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 16 ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ ਗਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ? देखो जी, मैं तो पहले दसना चाहना, भारतीय जनता पार्टी पहले गठबंधन सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 22-23 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ, 3 ਸੀਗੇ, 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰਾ 5% ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਡ ਮੈਰਿਜ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ उन्होंने देखी होएगा, उन्होंने अलग गल है। तुसी वो नशे का भी जो सवाल पूछा, मैं जो कैप्टन साहब बिग फिश की गल कर रहे थे, मैं कह रही मगरमच्छ, समझ गए। अच्छा, हुण इंज हैगा 65 असी लड़िए या साडे ज्यादा होन या घट होन, जो अज दा जिहड़ा संकल्प विजन स्टेटमेंट तुहाडे सामने आया है, मेरा यह समझना है असी वी आर जॉइंड बोथ एट द हिप ते दिलों मिले हुए हैं। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇਚ ਐਂਕਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤੀ,
ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। देखो ਜਿਹੜੀਆਂ पार्टी चाहदियां ने अपना चेहरा डिक्लेयर करने वास्ते सीएम वास्ते, एक पार्टी है वो फैसला नहीं कर पा रहे कि एक होएगा या दूजा होएगा। हो जाएगा और उसकी घोषणा भी हो जाएगी तो की होएगा, अंदरों की होएगा। अच्छा एक पार्टी ने तो कर लिया ऑलरेडी अनाउंस, उन्होंने पूछो, खुद नहीं होया, उन्होंने कहा पब्लिक ओपिनियन पोल करा लो, उन्होंने पूछो खुश ने उसके बाद के नहीं, वो भी अगले वाले दिन पता लग जाएगा। विशाल जी हाँ सर छोटे टाइम के ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 28 ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ 2017 ਚ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਹੁਬਲੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। मैं उन्होंने दे रहा पर दिन तो पहले मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा, बाहुबली राज सीगा। देखो ये नशे की जी प्रॉब्लम है, बाकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ने इन्हों पेट्रोनेज चाहिए होंगी है। मैं कैप्टन साहब ने तुहानू दस्या उन्हें 63,000 पर्सन अरेस्टेड, वो तुहानू बाकी डिटेल दे देंगे। प्रॉब्लम कितों शुरू होंगी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, वो सवाल पूछना चाहिए। एक मिनट जवाब देना। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਲੜਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਆਲ very mature and experienced people. We will sit down and as we sit down we will resolve it. ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗੀ ये रिप्लाई तो ले लो, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਆਲ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ in Taratan, that's it. All these matters were under investigation. They're with the central agencies, and we hope that the investigation results will come out soon. और उन्होंने कहा है कि सन्नी के भांजे की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को ध्यान में रखकर करवाई है। That's got nothing to do with it. देखो, investigation is investigation. If the investigating officer feel that somebody is corrupt or somebody has done some garbage, it's his job to do it. Why are you blaming parties? This is the job of any agency, whether it's ED or CBI or IB or anybody it is. एक मिनट ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਵਗੈਰਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? देखिए आपको भी पता है और हमें भी पता है, सरकार चलाना एक चीज होती है, सरकार में कुछ लोग होते हैं जो उसको बढ़ावा देते हैं। और क्या होता है, अभी कैप्टन साहब ने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है कि उनके समय उन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया और क्या स्टेप्स हुए, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आप एक ही ब्रश से सबको ना पेंट कर दो। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी सरकार, किसी भी क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या इंडिपेंडेंट बीजेपी है, जहां पे हम अलायंस में, कोई नशा राज नहीं हो सकता। ये बाय डेफिनेशन मैं आपको कहता हूं, क्योंकि हमारी अपनी वैल्यूज ऐसी हैं। बाजवा जी नो डिबेट। बाजवा जी हो गया सानू पता सी गठबंधन सीगे, उन्होंने जो किया हूं उहदे बारे मैं की गया, सानू बड़ी खुशी है वो छड़ गए। बाजवा जी सर दो सवाल है जी, एक सवाल मेरा अश्विनी जी ਨੂੰ है, एक दो सवाल मेरे कप्तान साहब छोटे ने जी। सर पहला सवाल ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੀਐਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਪੜਾਈ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ
अश्विनी जी ने रिप्लाई करना था, दूसरा पूछना ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ डिसाइड करता है कि कौन चेहरा होएगा कौन नहीं होएगा और विधायकों के नाल मिल के करता है। लेकिन ये जो प्रश्न जो आता ना, मैनू लगता है कि पंजाब नूं जोड़न वाली गल्लां होनी चाहिए। इस पंजाब की मिट्टी च पैदा होया कोई भी व्यक्ति वो सारे अधिकार प्राप्त करता है जिहड़े उन्होंने होने चाहिए। तुसीं जिहड़ा प्रश्न करते हो दलित क्यों नहीं हो सकता, या दूसरा क्यों नहीं हो सकता, जट क्यों नहीं हो सकता, हिंदू क्यों नहीं हो सकता। मैनू ये लगता है कि असी समाज नूं जोड़न वाला लैट इहदे रिजल्ट आने दो, पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन चेहरा होएगा। पर मेरा ये मानना है कि इस पंजाब की मिट्टी च पैदा होया हर पंजाबी इस पद के लिए योग्य है। सेकंड क्वेश्चन सोनिया मैम ने लिख के देता कि भी ये बंदे सीगे मैं नहीं पढ़ सकिया ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। प्लीज नहीं, ये गलत तुसी कह रहे हो। होया कैसे सी, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट मिलिया सी और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मैंने कहा कि मैंने खबर आई है कि उत्थे बहुत रेत का चल रहा है। I said yes. She says why aren't you doing something about it? I said here is the list, who do I arrest? ऊपर तो कर लेता है तो सारे कर रहे हैं। नशिया वास्ते गल हो रहा है। नशे where do नशे come from? Please understand that आज बहुत नशिया दे विच बहुत पैसा है and you see any country in the world, ये कदे नहीं मुझे लोग अमेरिका जिथे पूरी साहब रहे ने from the 30s they have been trying to eliminate it, you can't eliminate it. Something goes, something else comes. उन सारे sources कितने हैं? Where do we get the nashas? Drugs are being brought in also by drones. It comes in from Uri, where the army has been fully established since 1948. It comes from Chamba. It comes across the border here. It comes from Karla coast. I had 700 kilos in one thing caught in from the Karla coast. ये तो सारे की तो आ रही है, फिर तुसी की करोगे, कौन सारे इट कम्स फ्रॉम दिल्ली तो आ रही है, नेपाल तो आ रही है। तो जिन्ना तुसी करोगे दैट इज एन एफर्ट व्हिच हैज टू बी मेड बिटवीन सारे स्टेट्स। मैं खट्टर साहब नूं साडे हिमाचल दे चीफ मिनिस्टर साहब नूं और पंजाब के गवर्नर साहब नूं और मैं शुरू च असीं मीटिंग कीती सी, तुसी सारे जानदे होगे, एंड टू सी हाउ वी कैन गेट टुगेदर एंड फाइट दिस। It is not an effort that can be made by one state. Everyone has to put their best into it. और वाहिगुरू की कृपा नाल मैं तुहानूं दस्सिया कि असीं 63,000 बंदे फड़ के अंदर करते, फिर असीं बिग फिश नूं भी फड़ लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता वी आर गेटिंग टुगेदर। बट अगर मैं कहां तुहानूं आज इट विल बी लाई कि इहने मैं मका लगा, इट इज नॉट पॉसिबल। आज इन्ना है कि तुहानूं दबा के इहनूं खत्म करके इहनूं किसी ना किसी तरह जकड़ के इहनूं थल्ले लिया सकदे हो, पर मुकना नहीं है। मेरा एक सवाल आपके साथ। हाँ, कलाम जी तो बात बोलिए। कैप्टन साहब मेरा सवाल एक आपके साथ है कि एक सुनील जाखड़ जी का बयान आया कि 42 वोट उनको पड़ी थी आपको हटाने के बाद सीएम के लिए। मुझे क्या से मालूम, उनको पूछो। नहीं सर, उनका आरोप है कि जो कांग्रेस सेकुलर होती थी वो आज सेकुलरिज्म छोड़ चुकी है, वो हिंदू और सिखों के बीच में बनी हुई है। I am not in the Congress. I cannot explain. Please ask the congressman for an answer. नेक्स्ट हाँ जी, इसके बाद हाँ जी। MSP की गल की मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर जड़े हैं राहुल प्रजापति जी आए सी सर उन्होंने मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के करते पुराने एयरपोर्ट पे लॉन्च किया, लेकिन आज सर मतलब उसकी ਜਿਹੜੀ ग्रोथ है वो किसी ना किसी काफी बंद हुई है। तो नवीं नौकरियां लाने के ਜਿਹੜੇ पुराने ਆਪਾਂ ਨੇ स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले हुए हैं सर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ देखो जी, पहली गल तो जी निर्मला सीतारमन जी ने कही है 2047 का, ये बजट 2047 का नहीं है, ये बजट हैगा अगले 10 साल दे नींव रखने वास्ते। इट्स अ ग्रोथ बजट। जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की गल कही तो देखो दो मेजर टेक अवेज ने, एक तो
पिछले साल महामारी के बावजूद देखो 2020 मार्च पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई सी, इकोनॉमी हैड गॉन इनटू अ कंप्लीट लॉकडाउन। उस वक्त की सीगा हाउ डू वी सर्वाइव, ठीक है। एक युवा नेता को कहना जी मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है, तो हम पता है मैं कितनी जिक्र कर रहा हूं। और हमारा 170 करोड़ वैक्सीन डोजेज बनिया ने ते मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट हो जाने। एक तो हो सीगा महामारी के बावजूद इकोनॉमी ग्रू बाय 9.2%, ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਕਲ ईयर ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 8.5% ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ is being